आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग पार्ट 2। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विथ एन ओल्डर पर्सन विथ collocation, phrases, and idioms. We will use all these things to show how you can use in your speaking so that you can get your desired band score in speaking, right? So let's see the answers. Describe an interesting conversation you had with a very old person. ऐसा conversation जो interesting था और वो भी old person के साथ. Who this person is? ये कौन सा व्यक्ति है? Where you had the conversation? ये बात कहाँ पर हुई थी? What you talked about? आपने किस बारे में बात की? और last, how you felt about the experience? आपका जो experience था वो कैसा था? तो चलिए जानते हैं story. Honestly speaking, I'm shy and a reserved guy who is always in search of avoiding a conversation when in absence of acquaintances, for I'm laconic and therefore, so far, I have limited number of talks without them. With them, I all the time have fun. One incident took place a couple of months ago when I was sitting at a beach and a senior citizen kind of stumbled upon me. I was just listening to music and taking pleasure of sunset, and out of nowhere, an older person walked at me and asked, "What are you looking at, son?" I replied, "At the sun, uncle." To my surprise, he sat beside me and said, "Son, when I was younger, I used to come here alone just to enjoy the serenity of lush green trees and panoramic views of sunset, which usually cleared my head and recharged my batteries." We chatted a little bit. He then went on to convey his experience of 60 years portraying his role of a son, husband, father, and grandfather, creating fascination to dip deeper how he managed. One phase I absolutely loved was his time of young adult. Before turning 24, he already had explored his five interests with financial crisis and dejection. He almost gave up, but the rejection of 5 years of relationship ignited the fire instead of distraction. He made millions out of nothing in the span of a couple of years, and the struggle led him to his love of life. He shared his schedule and tactics, which I found undoubtedly rewarding. As I was going to raise a question, he interrupted me, looked into my eyes, and said, "Son, life is a roller coaster. Get used to it. Devote yourself at a particular field. Earn handsome money. The woman you need will find you. Then you'll see the miraculous life." To wrap up, I'd say I could feel the thunder he went through and a turn of events. That conversation gave me insight of 60 years which I was going to spend mine to learn for. Conversation was more of an experience than interesting. आपको ये स्टोरी शायद लंबी लग रही होगी पर मुझे पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से दिखानी थी ना इसीलिए थोड़ी लंबी खींची है तो चलिए पीछे जाके देखते हैं कि सारे वर्ड्स के मतलब क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी कि प्रामाणिकता से आप जब बात करते हो तब उसको यही बोला जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। रिजर्व यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज्यादातर बात ना करता हो शांति से बैठा रहता हो वो। फिर है इन सर्च ऑफ यानी कि इसकी खोज में। एक्वेंटेंसेस यानी कि हमारे जो परिचित लोग हैं ना फेमिलियर पीपल वी कैन से। तो फेमिलियर पीपल की जगह पर मैंने क्या यूज किया है एक्वेंटेंसेस। फिर वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता हो ज्यादातर शांत रहता हो बातचीत ना करता हो उसको लैकोनिक बोला जाता है। फिर हैव फन बताइए। टू प्लेस यानी कि हैपन। हम बोलते हैं ना कि वन इंसिडेंट हैपन और अकर इसकी जगह पर ये कोलोकेशन ऐड कर दो बहुत ही अच्छा लगेगा। टू प्लेस एक्चुअली V2 है क्योंकि पास्ट में है इसीलिए वरना V1 क्या आएगा टेक प्लेस। स्टम्बल्ड अपॉन
यानी कि एक्सीडेंटली किसी व्यक्ति या फिर अपॉर्चुनिटी को मिलना या फिर पाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग प्लेजर। हम बोलते हैं ना एंजॉयड, उसके जगह पर आपको क्या यूज करना है, टेक प्लेजर। यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसीलिए मैंने आईएनजी लगाया है। आउट ऑफ नोवेयर यानी कि कहीं पे भी अगर आपको कोई भी दिखाई ना दे और अचानक से आपको दिख जाए, तब उसको बोला जाता है आउट ऑफ नोवेयर। टू माई सरप्राइज यानी कि मेरे ही आश्चर्यचकित में, मुझे ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, राइट, तब ये यूज होता है। सरेनिटी यानी कि एकदम शांत। लश ग्रीन ट्रीज यानी कि हरे भरे पेड़। फिर है पेनोरमिक व्यू। पेनोरमिक व्यू का मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, कि जो व्यू है ना वो बहुत ही शानदार व्यू है। हमारे फोन में भी मोड आता है ना पनोरमा, तो जो वो लंबी वाली फोटो हम खींचते हैं, उसको ये वर्ड आप कंसिडर कर सकते हो। क्लियर्ड माई हेड, इसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं, क्लियर्ड माई माइंड। माइंड नहीं, क्या है। ये जो फ्रेज है ना वो कौन यूज करते हैं, फॉरेनर्स। रिचार्ज माई बैटरीज यानी कि मेरी जो एनर्जी थी वो मैंने क्या कर ली, वापिस से हासिल कर ली। इडियम है रिचार्ज माई बैटरी। जब भी ट्रैवलिंग के बारे में बात आए या फिर प्लेस के बारे में बात आए, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो कि दिस रिचार्ज माई बैटरी। नेक्स्ट देखते हैं वेंट ऑन, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो और बीच में पहुंचे और आपको वो पूरा करना ही है, तब आप यूज कर सकते हो कि ही वेंट ऑन या फिर आई वेंट ऑन। ठीक है। कन्वे यानी कि बताना। टेल, टेल की जगह पे मैंने क्या यूज किया है, कन्वे। बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्या कन्वे किया था, एक्सपीरियंस, कोलोकेशन है। पोर्ट्रे यानी कि निभाना, अदा करना, क्या, जो रोल है वो। फिर क्रिएटिंग फैसिनेशन। फैसिनेशन यानी कि दिलचस्पी, तो दिलचस्पी जगाना। क्रिएटिंग फैसिनेशन, कोलोकेशन है। एब्सोल्युटली लव्ड, मैं सीधे से ही बता सकता था आई लव्ड, नहीं, पर मुझे कोलोकेशन दिखाना था तो मैंने क्या यूज किया, एब्सोल्युटली। फिर एक्सप्लोर, आपको अब पता चल ही गया होगा कि एक्सप्लोर यानी कि जो भी चीज है या फिर जगह है उसको एक्सपीरियंस करना, राइट। इंटरेस्ट यानी कि हमारी जो रुचि है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि पैसों की तंगी। डिजेक्शन यानी कि उदासी, जो कोई व्यक्ति उदास होता है ना उसको क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड। पर यहाँ पर नाउन है तो क्या हो गया, डिजेक्शन। गिव अप, छोड़ देना। फिर इग्नाइटेड द फायर, इग्नाइट यानी कि जलाना, क्या, द फायर। फिर है आउट ऑफ नथिंग, उसका मतलब ये है ना कि कुछ भी ना होना और उसमें से कुछ बनाना या फिर उसमें से कुछ, तब ये यूज होता है आउट ऑफ नथिंग। और स्पान ऑफ यानी कि ये टाइम लिमिट दिखाता है कि इन द स्पान ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, कि कपल ऑफ ईयर्स का जो समय था उनमें से। लीड का V2 है लेड, उसका मतलब ये है कि लीड करना, की ओर ले जाना। ठीक है। लव ऑफ लाइफ यानी कि हम जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं वो अगर मिलता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लव ऑफ लाइफ। अनडाउटेडली रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग यानी कि बेनिफिशियल, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं और हमको जो रिवॉर्ड मिलता है तब जो फीलिंग होती है ना उसको क्या बोला जाता है, रिवॉर्डिंग। और वो भी कैसा रिवॉर्डिंग है, अनडाउटेडली, शंका ही नहीं है। फिर रेज अ क्वेश्चन, जब आप कोई भी मुद्दा उठाते हो तब आप ये यूज कर सकते हो रेज एन इश्यू। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उठाया था तो मैंने क्या यूज किया, रेज अ क्वेश्चन। ठीक है। फिर है लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, यानी कि लाइफ कैसी है, रोलर कोस्टर जैसी है। ये इडियम भी है, आप ये यूज कर सकते हो कि लाइफ ऊपर नीचे ही होती रहना। फिर है गेट यूज टू इट, यानी कि उसके मुताबिक ढल जाना। डिवोट यानी कि हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पावर, सब कुछ किसी एक चीज या फिर किसी एक डिरेक्शन में लगाना, उसको क्या बोला जाता है, डिवोट। फिर हैंडसम मनी, मनी तो है पर कैसी है, हैंडसम यानी कि बहुत सारा पैसा। फिर है टू रैप अप, हम ओवरऑल यूज करते हैं ना तब इसके बजाय क्या यूज होता है, टू रैप अप। ये इनफॉर्मल वर्ड है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में ही यूज होगा, राइटिंग में हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, इनफॉर्मल वर्ड है। फील द थंडर, फील द थंडर यानी कि किसी भी व्यक्ति जो सिचुएशन से पास ऑन हो रहा है, उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आप फील कर सकते हो, उसको क्या हम बोल सकते हो,
फील द थंडर, वेंट थ्रू यानी कि पसार होना, बहुत ही मुश्किल समय से पसार होना, टर्न ऑफ इवेंट्स यानी कि बहुत सारी घटनाएं जो हमारे लाइफ में घटती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स। इनसाइट, इनसाइट यानी कि जो भी बात है या फिर स्टोरी है उनमें से जो मेन मैसेज हमको मिलना चाहिए ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनसाइट। मोर ऑफ यानी कि किसी एक और झुका हुआ होना। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसा है कि ये जो कन्वर्सेशन हमारा था वो इंटरेस्टिंग के बजाय एक्सपीरियंस के तरफ ज्यादा था। ठीक है, मोर ऑफ ऐसे सेंस में यूज होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या फिर डाउट है देन यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन। आई विल रीच आउट टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरी विद इन हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस और फ्रेंड्स हु इज टेकिंग IELTS एग्जाम टू हेल्प देम गेट द डिजायर्ड बैंड स्कोर इफ दे लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हियर, राइट? तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी टॉपिक के पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे क्वेश्चन के आंसर देने में रियल टेस्ट के। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस टाइम।